اسٹارٹ۔ آج ہندوستان میں اگر کوئی بات مسلمانوں کو خاص کر کے ہندوستان میں بلکہ کہوں گا پوری دنیا میں جو بات مسلمانوں کو سب سے زیادہ چبھ رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ آج ایک انسان جو کہ شاید کسی طرح چاہتا ہے کہ پہلی تو یہ سمجھ لے کہ حالانکہ اریسٹ کر لیا گیا ہے یتی نسیمانند سرسوتی کو، لیکن کولکاتہ کے مسلمان کہاں پیچھے رہنے والے، اور اس وقت ہم کڑایا پولیس تھانہ کے باہر ہے جہاں پہ دارالعلوم اشرفیہ قطبیہ کے لوگ آئے ہیں اور آ کر ابھی ایف آئی آر داخل کر چکے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ ایف آئی آر داخل ہو چکا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے نسیمانند کو یہاں پہ بھی ٹرائی کیا جائے۔ حالانکہ یو پی پولیس نے انہیں سو موٹو کیس کو رجسٹر کرتے ہوئے انہیں اریسٹ کیا ہے۔ آئیے آپ کو بات کروائیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ کارروائی کی جائے اور ایسے لوگوں کو کیا کمپلین کیا آزاد ہندوستان میں آزاد زندگی گزارنے ہم لوگ آپ کے چینل سے اگر ایسا رہے گا یہی پوری عوام کو اور حکومت ہند کو بتانا چاہتے ہیں کہ نرسنگھانند جیسے پرکھنڈی جو آئے دن ہمارے نبی جو تمام عالم کے لیے محسن کائنات بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، ان کی شان میں نازیبا حرکت اور گستاخی جو ہمیشہ ہر وقت کی ہے، جو تمام مسلمان اور تمام امن پسند لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ آج دارالعلوم اشرفیہ قطبیہ مسجد محبوب رحمانی کی جانب سے تمام ممبران، مصلیان، ائمہ حضرات، علماء حضرات، حفاظ حضرات اور وکیل حضرات مل کر ہم لوگ کرایہ تھانہ میں اس کے خلاف ایف آئی آر کرنے کے لیے آئے، اور جو ہم لوگوں نے آج ایف آئی آر کر لیا ہے اور ایف آئی آر کی کاپی بھی موجود ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کسی بھی مذہبی کے جو پیشوا ہے اس کے خلاف کوئی ایسا بھاشن جس سے ہندوستانی تہذیب جو یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے اور یہ جو ہے لیٹر ہے جو ہم لوگوں نے مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ قطبیہ کی طرف سے اس لیٹر کے ذریعے ہم لوگوں نے کرایہ تھانہ میں ایف آئی آر کروایا ہے، جو ایف آئی آر کی کاپی ہم لوگوں کو مل گئی ہے۔ ہم حکومت ہند سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ نرسنگھانند جیسے پرکھنڈی جو ہندوستان کی تہذیب کو اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو پامال کر رہا ہے اور وہ یہاں کے امن و امان کو خراب کر رہا ہے، تو حکومت ہند سے مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد ایسے شخص کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہی ہم لوگوں کا مطالبہ ہے، یہی ہم لوگوں کا تمام ائمہ اور تمام جو ہے بنگال کے مسلمانوں کا اور تمام ادارہ کے تمام ممبران اور تمام لوگوں کی یہی جو ہے اپیل ہے حکومت ہند سے، بالخصوص ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی اور امت شاہ جی سے یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد نرسنگھانند کو گرفتار کیا جائے تاکہ ہندوستان کے امن و شانتی کا آپ کو روکنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آ رہی ہے کہ یتی نسیمانند سرسوتی کو یو پی کی پولیس گرفتار کر لی ہے۔ اب تک تو ہم لوگوں کے پاس کوئی خبر نہیں آئی ہے اور ہم لوگوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اب تک تو حکومت اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے، اور حکومت اگر اس کے خلاف آواز اٹھا لیتی، اس سے پہلے بھی اس نے نبی کی شان میں گستاخی کیا، اگر اس وقت بھی اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تو ہمیں یقین تھا کہ یہ دوبارہ قدم وہ نہیں اٹھاتا۔ اس لیے انہوں نے دوبارہ قدم اٹھایا ہے میرے نبی کی شان میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مسلمان قوم کے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے، یہ تو تمام قوم کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اچھا حضرت، ایک سوال ہے کہ جب آپ تھانہ میں آئے تو تھانہ کے لوگوں کا ویوہار کیسا تھا اور ان کا کیا کہنا تھا؟ ہمارے کلکتہ پولیس بالخصوص کرایہ تھانہ کے بڑے بابو، سیکنڈ آفیسر، ان تمام لوگوں نے ہم لوگوں کو دلاسا دیا
कि आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग अपने ऊपर वाले से बात करते हैं और आप लोगों के मुतालबे को पूरा किया जाएगा। तो हमारा किराया थाना पुलिस ऑफिसर ने हम लोगों का जो है सहयोग किया और उन्होंने FIR किया और FIR का कॉपी हम लोगों को दिया है। क्या लगता है कि कब तक इन्हें कलकत्ता अरेस्ट करके लाया जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराया है और ये उम्मीद की जा सकती है कि कोलकाता में उन्हें अरेस्ट करके यहाँ की पुलिस भी उनसे उस तरह सवाल जवाब करे और उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करे। ये तो हम अपने जो है किराया कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता पुलिस के जो भी हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस काम को करें, ताकि कलकत्ता में जो मुसलमान अब तक सब्र के दामन को थामे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये अमन और शांति, क्योंकि हमारे बिरादर वतन भाई के त्योहार का भी मौका है, ताकि यहाँ बंगाल का कोई अमन और अमान भंग न हो, ये हम कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को ये इत्मीनान कलकत्ता पुलिस दे दे, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके कोलकाता लाए। हमारे साथ मुफ्ती साहब है। मुफ्ती साहब, एक चीज जानना चाहेंगे कि पहला तो आप अपना तारुफ कर दें और दूसरी बात ये हमें बताएं कि पिछले दिनों में हमने कई एक ऐसे वाकये देखे जहां मुसलमानों को तकलीफ देने की या उनके दिल में तकलीफ देने की काम बहुत सारे लोगों ने किया। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम हुआ मुफ्ती मोहम्मद वसीम खान अशरफी, खतीब व इमाम मस्जिद महबूब रहमानी, नाज़िम आला दारुल उलूम अशरफिया कुतबिया, चेयरमैन कुतबिया एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, बानी NH एकेडमी कोलकाता। अब बात क्या है, अभी हिंदुस्तानी हालात देख के ये चंद सालों से बहुत ही तकलीफ हो रहा है, जहां की गंगा जमनी तहजीब और यहाँ की जमहूरियत हर चाह जानिब मशहूर और लोग यहाँ की जमहूरियत के ताल्लुक से बताते थे, लेकिन तकलीफ इस वजह से हो रहा है, इधर कई सालों से हर वो काम किया जा रहा है जो इस्लाम और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचे। यही वजह है तो कभी अरसी आता है, वक़फ़ औक़ाफ़ का मसला आता है, लेकिन बात क्या है, हम मुसलमान सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। औक़ाफ़ का मसला हो, NRC हो, हमारी जान की बात हो, माल की बात हो, औलाद की बात हो, अमजाद की बात हो, कोई ऐसी बात हो, हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हम मुसलमान कभी भी अपने नबी रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी सिर्फ रहमतुल लिल मुमिनीन बन के नहीं आए, बल्कि वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं और वो सारे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं। ही बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मुसलमानों की सबसे कीमती जो असासा है हमारे पास, वो अपने नबी की मोहब्बत है, अपने नबी की इज्जत है, अपने नबी की अजमत है, उनकी शान है, शौकत है, उनके नामूस की हिफाजत करना है। और जब मुस्तफ़ा की नामूस की बात आती है तो हमारा हालात ये होती है हमारे अंदर कि हमें इस सर पे, इस जिस्म पे सर रखना हमें उतना पसंद नहीं आता है जितना अपने नबी की मोहब्बत और उनके नामूस की हिफाजत के लिए हमें सर कटाना महबूब होता है। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि ये नरसंगा नंग और रामगीरी और जो भी इन जैसे जहन वाले हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और सख्त से सख्त इसके उन लोगों के खिलाफ कानून बनाया जाए। और सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा इस्लाम कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि तुम दूसरों के भी पेशवा को गलत मत कहो, उसे गाली गुलोच न कहो। तो मैं तो यही कहूंगा, कोई भी ऐसा किसी भी मजहब के पेशवा के ताल्लुक से गलत बोले, हाँ वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी चेहरे वाला हो, किसी का भी से भी उसका ताल्लुक हो, कोई भी ऐसा हो, उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए ताकि किसी भी पेशवा के
किसी भी मजहब के पेशवा के ताल्लुक से कोई ऐसी गलत अल्फाज ना बोले। मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरा है कि जैसा आज देखा जा रहा है कड़ाया थाना में जो आप लोग एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, ये कलकत्ता में सबसे पहले एफआईआर लॉन्च कराया जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को कि और भी लोग अपने एरिया मोहल्ला से, क्लबों से, अदारे से बाहर निकल के एफआईआर लॉन्च कराए? क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? मैं तो ये कहूंगा कि जब तक उसके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं होगा तो हमें, हिंदुस्तान जमहूर है, इस जमहूरियत का मुझे हक दिया गया है कि मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। फिर कानून में रहते हुए उससे भी नहीं होगा तो मैं एहतजाज करूंगा। कानून, हिंदुस्तानी उसूल और ज़वाबित हमें जिस जिस चीज की इजाजत देती है हम हर चीज उसके खिलाफ करेंगे। इससे पहले भी तो नरसिंहानंद सरस्वती ने बहुत सारे हमारे रसूल के खिलाफ में काफी सारे बातें बयान की है। अचानक आप लोग इतने दिनों के बाद आप लोगों ने ये सवाल नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा हम लोग से, ये बात सच है, क्योंकि ये बहुत दिन से हो रहा है और वो हमेशा करते आता है ये, ठीक है, अपना ग्रुप के संग हमेशा बदनाम करते रहता है एक दूसरा का, मतलब दोनों धर्म का आदमी लोग को लड़ाना, यही काम है वो लोग का, यही मेथड है। तो अब ये और नहीं चलेगा, अब मुसलमान जाग चुका है और मुसलमान अब एफआईआर करेगा और सब कुछ करेगा और जो भी नेसेसरी होगा वो करेगा अपना। नरसिंहानंद सरस्वती का सिर्फ न सिर्फ रसूल के खिलाफ बल्कि इस्लाम के खवातीनों के बारे में भी कई सारे अपशब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। क्या उसको लेकर भी आप लोग क्या सिर्फ मगरबी बंगाल में एफआईआर करेंगे या फिर शहर पूरे हिंदुस्तान में करेंगे हम लोग, पूरे हिंदुस्तान में दरकार पड़े पूरे हिंदुस्तान में करेंगे हम लोग, सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ठीक है। को पूरा कहा जा रहा है, क्या इस पे कानून पार्लियामेंट में बनना चाहिए, इसके ऊपर आप कुछ आप लेटर लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को? जी हाँ, जरूरत रहेगी जरूर लिखेंगे। आपका कानून बनना ही चाहिए, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोले। हमारा इस्लाम कहता ही है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। हमारा कुरान कहता है, हमारा इस्लाम कहता है, हमारे रब ने कहा कि तुम किसी के भी माबूद को गलत मत कहो, नहीं तो वो अनजाने में तुम्हारे माबूद को गलत कहेगा। अंदर में काफी बड़े बड़े मुसलमान अदारे हैं, काफी बड़े बड़े मुसलमान इंटेलेक्चुअल है, क्या अभी तक उन लोगों की नाकामी या उन लोगों के कान में ये गुरज दे रहा है, उसके बावजूद वो लोग खामोश बैठे हैं? जी नहीं, वो लोग खामोश नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे पेशवा हैं या हमारे अभी या हमारे उलमा हैं, मशाइखीन हैं, हुफ़ाज़ हैं, अइम्मा हैं, हमारे दानिशवर्द हैं, सब अपने अपने एतबार से काम में लगे हुए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब हुआ तो भी क्या कड़ाया थाना से एफआईआर का आपको एफआईआर कॉपी वगैरह मिला है? जी हाँ, यही कॉपी मिली, सेक्शन लगाया गया है, जो जरूरत था वो उन्होंने लगाया है। यहाँ पे आप खुद देखिए, हमारे वकील साहब क्या क्या सेक्शन लगाया गया है? देखिए इसमें जो लगाया जरा বাংলায় বলছি আমি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমরা এখন কড়িয়া থানাতে আছি। আমরা জানি গত 29 সেপ্টেম্বর গাজিয়াবাদের হিন্দি ভবনে নরসিমানন্দা, স্বামী নরসিমানন্দা, তাকে স্বামী বলাটা অপরাধ হবে, নিকৃষ্ট নরসিমানন্দা প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ডেরোগেটরি স্টেটমেন্ট কিছু রেখেছেন, যেটা নিয়ে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা অসন্তোষের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে এবং হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণভাবে একটা অসন্তোষের প্রক্রিয়া চলছে। তো সেই কারণে আমরা কড়িয়া থানাতে আসি এবং এখানে এসে এফআইআর দায়ের করি এবং এফআইআর এর সেকশন যেগুলো লাগানো হয়েছে 196(1) এবং 299, যার মানে হচ্ছে প্রমোটেড হেট্রেড এবং ডিফারেন্ট কমিউনিটিজ, যে ডিফারেন্ট কমিউনিটিজ আছে কলকাতা বা কলকাতা গোটা ভারতবর্ষে, সেই ডিফারেন্ট কমিউনিটিজ এর মধ্যে হেট্রেড সৃষ্টি করার একটা পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। আপনারা কি শুধু কলকাতাতে আপনি এখানে কেন করলেন? আপনি লালবাজারে গিয়ে বা কোর্টের মাধ্যমে মারফত আপনারা তো পিটিশনও দিতে যাবো আপনি তো রিট পিটিশনও করতে পারছেন, আপনি কি রিট পিটিশন করেছেন? না, প্রথম প্রসেস যেটা হচ্ছে এফআইআর করা। আমরা তো আইনের বাইরে যেতে পারি না। ভারতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যথেষ্ট ম্যাচিওর সম্প্রদায়, সেই কারণে এত অত্যাচার সহ্য করেও তারা চুপচাপ বসে আসে এবং তারা আইনের পথে অবলম্বন করছে। আমরা আইনের পথে আছি। আমাদের প্রথম প্রসেস ছিল এফআইআর দায়ের করা, যেহেতু আমরা কড়িয়া থানার অন্তর্গত সেখানে আমরা কড়িয়া থানায় এসে এফআইআর দায়ের করেছি। পুলিশ অফিসাররা বলেছে যে ওকে সম্মান পাঠাবে বা ওনাকে কোনো ডাক দেবে বা ওনার সাথে কথা বলবে, সেটা তাদের ইনভেস্টিগেশনের পার্ট, সেটা তারা কি করছে না করছে আমরা পরবর্তীতে সেদিকে নজর রাখবো এবং যদি প্রয়োজন হয় গোটা কলকাতা শহরে আমরা এর থেকে বড় মিছিল নামিয়ে দেখাবো। এটা কি আপনার কড়ায়া থানা শেষ দিকে, তারপর আপনার নেক্সট এফআইআর আপনি কোন থানায় করবেন? নেক্সট আপাতত এখানে হয়েছে, আমরা অ্যাপিল রাখবো পুরো কলকাতাবাসীর কাছে, কলকাতার যত থানা আছে সে প্রত্যেকটা থানায় যাতে তারা এফআইআর দায়ের করে।
ठीक है जी सर, मुफ्ती साहब कहाँ गए? खैर आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि देखा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों के ईगो को ठेस पहुंचाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ जो है ये निशाने पर अगर कोई है तो वो सिर्फ मुसलमान। यहाँ इतने धर्म है लेकिन किसी का इतना जिक्र नहीं आ रहा है, इतना जो है सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ मुसलमान ही क्यों आ रहा है निशाने पर? आखिर ये अभी जो ये नरसिंहानंद पाखंडी वलदुज़्ज़ना जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया है, ये क्या सोचकर यहाँ सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने में ये पूजा को लेकर जो है ये बात को उकसाया गया है ताकि इस पर मुसलमान भड़के और कोई ऐसा मामला हो और फिर इस गंगा जमनी तहजीब को जो है तार तार किया जाए। समझे? यही हमारे और हम मुसलमान जो है हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। अपनी जान की बाजी भी बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी जान मारी जाए वो भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी की जाए तो ये हरगिज बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने अपनी मोहब्बत से दीन को फैलाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के साथ, और हमारा इस्लाम जो है मोहब्बत का ही पैगाम देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना अच्छा पैगाम कि हमारे इस्लाम ने ये भी कहा कि किसी भी मजहब को गलत ना कहे। ये हमारे इस्लाम ने कहा किसी मजहब को गलत ना कहे, और मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम हमारे इस्लाम ने दिया। क्या कहना भाई, आप लोग यहाँ पर आए, क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे समझने की ये है कि ये जो चल रहा है एक बड़ी साजिश के तहत चल रहा है। आज पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को तोड़ने की, मुसलमानों को परेशान करने की तो आज मैं ये कह रहा था कि आज के डेट में खास तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। कभी वो नकाब का मामला हो, कभी हिजाब का मामला हो, और कभी जो हजरत मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामला है, कभी 3 तलाक का मामला, कभी वक़फ़ का मामला, प्यारे आका। और अब जो है इन्होंने हद पार कर दी है। और ये बात जान लें कि अभी तक अगर हिंदुस्तान में अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर अगर संभल कर है तो ये सिर्फ मुसलमानों की अपनी दूर अंदेशी है, और मुसलमानों ने सब्र कर रखा है, इसी का नतीजा है। और ये जानने के खास तौर पर समझने की बात यह है कि हमने हमेशा से कानून का सहारा लिया है और कानून को अहमियत दी है। सिस्टम को हमने कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं की है। उसी का एक नतीजे के तौर पर हम आज कराया थाना पुलिस स्टेशन आए थे यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए। तो यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने केस तो दर्ज कर लिया है और एफआईआर भी उन्होंने लॉन्च कर लिया है। अब यहाँ से हम बस कुछ दिन के लिए इंतजार करते हैं कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। अगर पुलिस एक्शन प्रॉपर लेती है, उस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे का एक्शन हमारा जो है, चाहे वो धरने की सूरत में हो, चाहे वो रोड ब्लॉक करने की सूरत में हो, चाहे वो बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करने की सूरत में हो, वो हम करेंगे, उसको हम अंजाम देंगे। तो आपसे एक सवाल है खास करके कि अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक औरत ने ऐसा ही कुछ बयान दिया था और कुछ ऐसा ही कंप्लेन किया गया था, लेकिन उसके बाद उसे एक दिन भी कलकत्ता पुलिस हिरासत में नहीं रखती है। आपको क्या लगता है यति सरस्वतीनंद के ऊपर क्या इस तरह का, नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर इस तरह का ये लिया जाएगा, स्टेप लिया जाएगा? उम्मीद है, कानून से उम्मीद है, कानून जरूर ऐसा करेगी। वो तो कानून का काम है, लेकिन हमें कानून से उम्मीद है क्योंकि हिंदुस्तान है, जमहूरियत है। कानून से लाख आखिरी उम्मीद है भैया। नेक्स्ट टाइम नबी के बारे में सुनना अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया। कोई भी आ रहा, कुछ भी आ रहा, बोल के चले जा रहा है, कोई ठीक है। हम लोग नहीं बोलते हिंदू भाई के बारे में, कभी कुछ बोलते सुनते हैं, कोई मुसलमान बोला क्यों पड़े हुए हम लोग के पीछे में? अब बर्दाश्त नहीं होगा दादा, बस इतना बोल दिया। आप सुनेंगे नबी के बारे में, हम लोग का जिंदगी है वो, हम लोग को रास्ता बताए हैं, इबादत करने का रास्ता, हर चीज का तरीका सिखाए हम लोग का नबी। अगर उनके बारे में कुछ बोलिएगा तो भाई बर्दाश्त अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो ये थे कोलकाता के मुसलमान जो अभी कड़ाया पीएस, जी हाँ मेरे ठीक पीछे कड़ाया पीएस में आए हैं और आकर अपनी तरफ से कंप्लेंट दायर करवाया है। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को डिटेन कर लिया गया है या अरेस्ट कर लिया गया यूपी पुलिस के द्वारा। लेकिन फिलहाल क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? जितना हमने देखा है, जितना सुना है, कितनों की कन्विक्शन हुई, अब जरूरी है कि किसी की कन्विक्शन हो ताकि ऐसे करने वाले लोगों के दिल में एक डर पहुंचे। आपको बताया कि मुसलमान
आपको बताया कि पिछले 29 सितंबर को एक सभा में यति नरसिम्हानंद सरस्वती कुछ ऐसा बयान देते हैं, जी हाँ, कुछ ऐसा बयान देते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में खंजर चुभ जाता है। जी हाँ, हमारे नबी के नाम में कुछ ऐसा कहते हैं जो शायद ऑन कैमरा किसी भी इंसान के लिए कहना सही नहीं होगा। साथ में आपको बताया कि उसके ऊपर यति नरसिम्हानंद सरस्वती के ऊपर बहुत सारे एफआईआर होते हैं। उसके बाद आज उन्हें गाजियाबाद की पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है और कलकत्ता में ये पहला एफआईआर का दौर है। और जैसा कि लोगों ने कहा कि इसके बाद एहतजाज चलेगा अगर उन्हें जल्द से जल्द कानून के हवाले नहीं किया जाता है, कानून के मुताबिक उन्हें सजा नहीं दी जाती है। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।